شروع کرتی ہوں اس معبود کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ آڈیو ویژول کلاس میں آج ہم فرانس کے انقلاب، دا فرینچ ریولیوشن کے تعلق سے وہ تمام باتیں سمجھیں گے جو اس انقلاب کی اہم کڑی رہی ہیں۔ فرانس کے انقلاب کی شروعات کے تواریخی واقعات میں ہسٹورین میں اختلاف ہے۔ بعض ڈے آف ٹائل کے واقعات کو اہمیت دیتے ہیں جو کہ 7 جون 1788 عیسوی کو گرینوبل کے مقام پر شروع ہوئے، تو بعض 27 اپریل 1789 عیسوی کو پیرس میں ہونے والے ریویلن رائٹس کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم فرانس کے انقلاب کے تواریخی واقعات کی شروعات دا میٹنگ آف اسٹیٹ جنرل سے کرتے ہوئے اس کا خاتمہ لیجسلیٹو اسمبلی کے قائم ہونے پر کریں گے۔ اس دوران ٹینس کورٹ اوتھ، دا اسٹارمنگ آف بیسٹل، پیرس کمیون، گریٹ فیئر اور گرینڈ پیور، ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ سٹیزن، ورسائلز مارچ اور قومی اسمبلی کے ذریعہ لائی گئی تبدیلیوں وغیرہ کے اہم واقعات سے بھی واقف ہوں گے، جو کہ 1789 عیسوی سے 1791 عیسوی پر مشتمل ہوگا، جسے انقلاب فرانس کی مدت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مدت کو فرانسیسی انقلاب کا لبرل پیریڈ کہا جاتا ہے۔ سیونٹین 1789 عیسوی میں فرانس معاشی بحران میں مبتلا ہو کر بربادی کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ احتجاج اور فساد روز کا معمول بنتا جا رہا تھا اور لوئی 16 کی کمزور بادشاہت بے بس ہو چکی تھی۔ ان حالات میں بادشاہ کے پاس اسٹیٹ جنرل کی میٹنگ بلانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں تھا۔ آخر کار 5 مئی 1789 عیسوی کو لوئی 16 نے معاشی بحران کو حل کرنے کے لیے ورسائل کے مقام پر اسٹیٹس جنرل کی میٹنگ بلائی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اسٹیٹس جنرل کے تعلق سے کچھ اہم جانکاری شیئر کرتی چلوں۔ اسٹیٹ جنرل فرانس کے تینوں اسٹیٹ یعنی نوبلز، کلرجی اور کامن پیپل کے نمائندوں پر مشتمل ایک لیجسلیٹو اینڈ کنسلٹیٹو اسمبلی تھی۔ اس زمانے میں اس طرح کی اسمبلی یورپ کے دوسرے ممالک انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، پورتگال یا اسپین میں بھی موجود تھی۔ یہ اسمبلی ملک کے نہایت ہی سنجیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بلائی جاتی تھی۔ فرانس میں اسٹیٹ جنرل کا پہلا اجلاس 10 اپریل 1302 عیسوی کو پیرس میں بلایا گیا تھا۔ اس اجلاس کا مقصد بادشاہ فلپ IV اور پوپ بونیفیس VIII کے درمیان تنازع کو ختم کرنا تھا۔ 1789 عیسوی کے اجلاس سے قبل 23 فروری 1614 عیسوی میں لوئی 13 نے ایبولیشن آف دا سیل آف آفس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلایا تھا۔ 1789 عیسوی کے اسٹیٹ جنرل سے قبل بادشاہ نے اسمبلی میں انتخاب کے ذریعہ اپنے نمائندے بھیجنے کی دعوت دی اور عوام سے کیہیئرز ڈی ڈالینس یعنی شکایت نامہ لکھنے کو بھی کہا۔ عوام کی اکثریت نے بادشاہ سے جو مطالبات کیے اس میں مقامی مسائل اور جائز مطالبات کے علاوہ انقلاب کی بو کہیں بھی نہیں تھی۔ اس الیکشن میں 304 کلرجی، 282 نوبلز اور 687 تھرڈ اسٹیٹ کے نمائندوں کو جیت ملی تھی۔ اسمبلی کی ابتدائی کارروائی میں تیسرے درجے کے نمائندوں نے علیحدہ علیحدہ میٹنگ کرنے کی تجویز کو رد کر دیا۔ ماہر معاشیات جیک سنیکر نے کمپرومائز پروگرام کی تجویز دی جسے عمرہ نے قبول نہیں کیا۔ تیسرے درجے والوں نے جین سیلوین بیلی جو کہ ایک سائنسداں تھے ان کو اپنا لیڈر منتخب کیا۔
10 जून को इमैनुअल सीएस के मशवरे पर तीसरे दर्जे के नुमाइंदों ने अलहदा मीटिंग करने का फैसला किया और दूसरे दर्जे वालों को शामिल होने की दावत दी। पादरियों की तरफ से सिर्फ 9 अफराद राजी हुए। 17 जून को असेंबली में वोटिंग के दौरान हंगामा आराई होने लगी। आखिरकार इमैनुअल सीएस की तजवीज पर तीसरी जमात वालों ने खुद को नेशनल असेंबली ऐलान कर दिया। बीस जून को स्टेट जनरल का इजलास होना था, लेकिन बादशाह के हुक्म पर असेंबली का दरवाजा बंद करवा दिया गया। तीसरे दर्जे के नुमाइंदे और उनके हामी पादरी की जमात ने डॉक्टर जोसेफ इग्नेस गिलेटिन के मशवरे पर असेंबली के नजदीक वाक़े टेनिस कोर्ट को मीटिंग के लिए मुनासिब जगह समझा और वहां चले गए। सजाए मौत देने के लिए कम से कम तकलीफ देने वाला आला डॉक्टर जोसेफ ने ही 10 अक्टूबर 1789 ईस्वी को इजाद किया था। उन्हीं के नाम से इस आले का नाम गिलेटिन रखा गया। 577 अफराद इस इजलास में शामिल हुए। इमैनुअल सीएस ने एक दस्तूर साज असेंबली तैयार करने का मसवदा तैयार किया, जिसे करारदार के तौर पर जेन सिल्वेन बेली ने पेश किया। उसके बाद इज्तिमाई हल्फे वफादारी, हम सब अलहदा नहीं होंगे और हालात के मद्देनजर मुल्क में दस्तूरी हुकूमत के कायम होने तक हर जगह जमा होंगे की आवाज गूंजने लगी। टेनिस हॉल में मौजूद सिर्फ एक फर्द जोसेफ मार्टिन ने हल्फ नहीं लिया। तवारीख में यह वाकया टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। लुई 16 ने ड्रामाई अंदाज में कौमी असेंबली को तस्लीम कर लिया और बाकी 2 दर्जात को भी इसमें शामिल होने का मशवरा दिया। ठीक उसी वक्त फौजियों की एक बड़ी तादाद को पेरिस में जमा होने का हुक्म दिया। अवाम के दरमियान ये खबर फैलने लगी कि यह फौज जल्द ही असेंबली के मुख्तदिर मेंबरों को गिरफ्तार कर लेगी और एहतजाज करने वालों को गोली मार देगी। अवाम की एक बड़ी जमात ने अपने दिफा के लिए कदम उठाते हुए बारूद बंदूक हासिल करने के मकसद से पेरिस के मशरिक में वाक़े एक किलानुमा जेलखाना बेस्टेल पर हमले करने का मंसूबा बनाया। 14 जुलाई को तकरीबन 7,000 की तादाद बेस्टेल किले तक पहुंच गई। कुछ घंटे की मज़ाहमत के बाद जेल खाना के गवर्नर लौने को शिकस्त देने में कामयाब हो गई। बेस्टेल किले में कैद 7 मुजरिम को रिहा किया। किले के गवर्नर और दूसरे सिपाही को कत्ल कर दिया और वहां मौजूद बारूद और दूसरे हथियार लूट लिए। इमारत के हिस्से को नुकसान पहुंचाया। बेस्टेल के किला का ढाया जाना एब्सोल्यूट मोनार्की का खात्मा था। 1880 ईस्वी में 14 जुलाई के वाक़े को नेशनल डे का दर्जा दिया गया। उस वक्त से आज तक हर साल 14 जुलाई का दिन बड़े एहतमाम से मनाया जाता है। ये एहतजाज करने वाले इनकलाबी हो गए थे। उन लोगों ने पेरिस शहर पर कंट्रोल कायम करने के लिए वहां मौजूद दफातर पर अपनी हुकूमत कायम कर ली, जिसे कम्यून कहा गया। जेन सिल्वेन बेली को मेयर मुंतखब किया गया। थर्ड स्टेट का पढ़ा लिखा तबका, जिसे बुर्जुआ कहा जाता था, वो लोग इसके मेंबर हो गए। इस कम्यून पर अगस्त 1792 ईस्वी में जैकोबिन वालों ने धोखे से कब्जा कर लिया। इनकलाबियों के जरिया बेस्टेल किले पर हमला और कम्यून के कायम किए जाने को फ्रांसीसी अखबार ला फ्रांस लिब्रे ने हिमायत करते हुए इस तरह के और कदम उठाने पर दबाव डाला। एक दूसरे अखबार ली पैट्रियट फ्रैंकेस ने भी इनकलाबी तहरीक को ताकतवर करने पर जोर दिया।
नतीजे के तौर पर जब 20 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस के मुख्तलिफ शहर और गांव में यह खबर बड़ी तेजी के साथ गश्त करने लगी कि बादशाह ने माहिर माशियात जैक्स नेकर, जिसे तीसरे दर्जे का हमनवा माना जाता था, उसे बर्खास्त कर दिया है और कौमी असेंबली को तोड़कर उसे कौमी दस्तूरसाज असेंबली में बदल दिया गया है। तो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अफवाहों के साथ कुछ खबरें फैलने लगी, जिनमें सबसे खतरनाक अफवाह ये थी कि उमरा और बादशाह फौज के जरिया फ्रांस वालों का कत्लेआम करवाना चाहते हैं। 22 जुलाई से 6 अगस्त के दरमियान पूरे पेरिस में खौफ का अजीम माहौल बन गया, जिसे ग्रेट फेयर का नाम दिया गया। फ्रांस के कॉम्टे, नॉर्मंडी और ड्यूल के किसानों ने जमींदारों के घर, अनाज गोदाम, जमीन के मॉर्टगेज पेपर जला दिए या फाड़ दिए। किसानों का ये रद्द अमल मुल्क के दूसरे हिस्सों स्ट्रेस, रोमेले, लेफर्ट, नैंटिस, सेंट फ्लोरेंटाइन, लोहेंस, रोफिक और ब्रेम गोया चारों तरफ फैल गया और फिर उन मकामात से एक हफ्ते में बकिया तमाम मुल्क में फैल गया। बहुत सारे उमरा मुल्क छोड़कर पड़ोसी ममालिक ऑस्ट्रिया, प्रशिया और सेवॉय वगैरह और पादरी रोमन कैथोलिक मुल्क में चले गए। मुल्क छोड़कर जाने वालों को इमिग्रेस कहा गया। यहाँ एक बात मैं वाज़ेह करती चलूं कि इमिग्रेंट और इमिग्रेंट में क्या फ़र्क है। इन दोनों अल्फाज के उर्दू मायने मुहाजिर के हैं। इमिग्रेंट उसे कहते हैं जो लोग अपना मुल्क छोड़कर मुस्तकिल रिहाइश के लिए दूसरे मुल्क चले जाते हैं, और इमिग्रेंट उसे कहते हैं जो किसी मुल्क में हमेशा रहने के लिए किसी गैर मुल्क से आते हैं। जुलाई में जब फ्रांस फसाद में झुलस रहा था, नेकर को दोबारा बहाल कर दिया गया और फ्रांस के अवाम और शहरियों को पहले से ज्यादा हकूक देने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तेज रफ्तारी से महजरनामा यानी डिक्लेरेशन पर काम करने में लगी हुई थी। 26 अगस्त 1789 ईस्वी को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन मंजर आम पर आया। 27 अगस्त को उसे तस्लीम कर लिया गया। इस ऐलाननामे को लफायेट ने थॉमस जेफरसन की मदद से तैयार किया। इस ऐलाननामे में जॉन लॉक, रूसो, वोल्टायर और मॉन्टेस्क्यू के उसूलों के अलावा फ्रांस के शहरियों को और ज्यादा हकूक देने के लिए ब्रिटानिया के द पिटीशन ऑफ राइट और द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका के दस्तूर आज़ादी का कुछ हिस्सा भी शामिल किया गया। इस ऐलाननामे में 17 आर्टिकल शामिल किए गए थे। उनमें से कुछ खास मजहब की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, छापा खाने की आज़ादी, जायदाद के हकूक की जमानत, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, आवाम को कानून साजी का हक और मुकदमे की गैर जानिबदाराना सुनवाई वगैरह हैं। इसकी खुसूसियत की बुनियाद पर इसे मैग्ना कार्टा की अहमियत हासिल है। तारीखदां जूलियस माइकेलेट ने इस ऐलाननामे को द क्रेडो ऑफ न्यू एज कहा है। 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी की सुबह औरतें हस्ब मामूल पेरिस के बाजार में सौदा सल्फ के लिए गईं तो बाजार में रोटी की कमी और आसमान छूती कीमत और पेरिस वालों के दरमियान बादशाह के जरिया महल में बहुत सारे अनाज और फल जमा कर रखने और शाही अफवाज के साथ कुछ उमरा को पार्टी देने की झूठी खबर ने उन्हें एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया। देखते ही देखते घर में इस्तेमाल होने वाले और खेत में काम करने वाले हथियारों के साथ तकरीबन 3000 औरतें जमा हो गईं। उनके एहतजाज में
مردوں کی جماعت بھی شامل ہو گئی، جس سے بھیڑ کی تعداد بڑھ کر 7,000 کے قریب پہنچ گئی۔ ان میں سے ایک اسٹینسلیس میری مائلیٹ نے بڑھ چڑھ کر لیڈرشپ کی ذمہ داری اٹھائی اور ورسائی محل کی جانب کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مائلیٹ وہی شخص تھا جس نے بیسٹل قلعے کو مسمار کرنے میں اہم کردار نبھایا تھا۔ خراب موسم کے باوجود مرد اور عورتوں کی ناراض بھیڑ نے پیرس سے ورسائی تک کی 30 کلومیٹر کی دوری طے کر کے رات کو بادشاہ کے محل ورسائی پہنچ کر گھیرا ڈال دیا۔ اسمبلی کے صدر جین جوزف مونیر کے ہمراہ پیرس بازار کی کچھ عورتیں بادشاہ سے ملاقات کے لیے محل کے اندر گئیں۔ ان لوگوں نے بازار میں روٹی کی کمی اور اس کی قیمت کے علاوہ اناج کی کمی سے عوام کے بگڑتے حالات کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے ان کی باتوں کو ہمدردانہ انداز سے سنا اور شاہی خزانے سے غلہ بانٹنے کا حکم دیا اور جو بند پڑے گا اسے کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ کچھ لوگوں نے اطمینان کی سانس لی۔ صبح ہوتے ہی عورت اور مرد کی ایک جماعت نے محل کا پھاٹک توڑ کر میری اینٹوانیٹ اور بادشاہ کے آرام گاہ میں داخل ہونے کی کامیاب کوشش کی، لیکن نیشنل گارڈ نے ان پر کسی طرح قابو پایا اور سمجھا بجھا کر انہیں خاموش کیا۔ دوسری طرف عورت اور مرد کی دوسری بڑی جماعت نے، جس میں مراد اور دوسرے لوگ شامل تھے، یہ نعرہ دینا شروع کیا کہ وہ لوگ نان بائی کی بیوی اور بچے سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں شک تھا کہ لوئی 16 اور اس کی بیوی میری اینٹوانیٹ محل سے بھاگ گئے ہیں۔ ان کے اصرار پر لوئی 16 نیشنل گارڈ کے جنرل کمانڈر لافائٹ کے ہمراہ بیلکونی میں آئے۔ عوام نے انہیں دیکھتے ہی پیرس واپس چلنے کا دباؤ ڈالا، جسے بادشاہ نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد میری اینٹوانیٹ اپنے بچوں کے ہمراہ بیلکونی میں آئیں۔ عوام نے اسے مار ڈالو کا نعرہ لگانا شروع کیا اور بندوقیں تان لیں۔ میری اینٹوانیٹ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے گھٹنے کے بل بیٹھ گئی۔ عوام نے معاف کر دیا۔ عورتوں کا یہ مارچ فرانس کے انقلاب کو دستوری شہنشاہیت سے جمہوریت کی طرف لے جانے کی پہلی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نیشنل اسمبلی نے ملک کے لیے جلد سے جلد دستور بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں ٹیلرینٹ ریڈیکل بریٹونسٹ جماعت کے آئزیک چیپلیئر، کنزرویٹو لائر جین جوزف مونیر، لافایٹ اور ایمینوئل سیس وغیرہ شامل تھے۔ ان افراد کے سامنے دو اہم سوال تھے۔ پہلا، حکومت کس کی ہو، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دوسرا، حکومت کس طرح کی ہو اور بادشاہ کا کیا کردار ہوگا؟ کافی بحث و تکرار کے بعد کمیٹی کے ممبر اس بات پر راضی ہوئے کہ حکومت کا فیصلہ عوام ووٹ کے ذریعہ کرے گی اور بادشاہ ملک کا سربراہ ہوگا، یعنی کانسٹیٹیوشنل مونارکی کو اہمیت دی گئی۔ کمیٹی نے عوام کو انتخاب میں ووٹ ڈالنے کا حق دیا، لیکن اسے دو حصوں ایکٹیو سٹیزن اور پیسیو سٹیزن میں بانٹ دیا۔ ووٹ دینے کا حق صرف ایکٹیو سٹیزن کو دیا گیا۔ ایکٹیو سٹیزن کسے کہا گیا؟ اس کے تعلق سے بتایا گیا کہ وہ مرد شہری جس کی عمر 25 برس سے زیادہ ہو اور باقاعدگی سے پراپرٹی ٹیکس یا 3 دن کی مزدوری کے برابر ٹیکس ادا کرتا ہو، وہ ایکٹیو سٹیزن ہے۔
25 बरस से कम उम्र के तमाम मर्द जो किसी भी किस्म का टैक्स अदा नहीं करते हों, और हर औरत चाहे वो गरीब हो या अमीर हो पैसिव सिटीजन है, यानी वोट देने का हक सिर्फ टैक्स अदा करने वाले मर्द हजरात को दिया गया। फ्रांस में कायम कदीम दस्तूर को खत्म कर दिया गया। कदीम दस्तूर के मुताबिक बादशाह के पास सरबराही, हाकमियत और वजारत का इख्तियार होता था। बादशाह को मुल्क का हेड यानी सरबराह बनाया गया। मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर पर अमल करते हुए इख्तियार को 3 हिस्सों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी में बांट दिया गया। एग्जीक्यूटिव पावर के तहत बादशाह को हेड ऑफ स्टेट बनाया गया। बादशाह को कैबिनेट तश्कील देने, वज़रा का इंतखाब करने और तकर्रुर करने का इख्तियार दिया गया। फौज और खारजा पॉलिसी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। बादशाह को कौमी असेंबली के बनाए गए कानून को पास करने या रद्द करने का इख्तियार भी दिया गया। कौमी असेंबली के पास मुल्क के मफाद में कानून बनाने का हक और वजीरों के जरिया अंजाम दिए जाने वाले काम की निगरानी का हक रहा। फ्रांस की कुल 28 मिलियन आबादी से तकरीबन 4 मिलियन आबादी को एक्टिव सिटीजन्स की फहरिस्त में शामिल किया गया। कानून साज असेंबली के लिए पहले मरहले में 50,000 मर्द शहरी का इंतखाब करेंगे और फिर इलेक्टरल्स अपने वोट के जरिया कौमी असेंबली के लिए 745 मेंबरान का इंतखाब करेंगे। जुडिशियरी को बादशाह और पार्लियामेंट से अलहदा रखा गया। एक्टिव सिटीजन्स को बराह रास्त जज के इंतखाब का हक दिया गया, यानी मुल्क में लंदन तर्ज की बाई कैमरल लेजिस्लेचर कायम करने को तरजीह दी गई। जब बात यहाँ तक पहुंची गई है तो नेशनल असेंबली के जरिया लाई गई तब्दीलियों को भी हम जान लेते हैं। नेशनल असेंबली ने सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी कायम करके रियासत के दूसरे काम करने वालों की तरह पादरियों के इंतखाब का निजाम जारी किया। ओहदे पर फायज होने से पहले पादरियों को कौमी दस्तूर और हुकूमत के मफाद में काम करने का हल्फ लेना लाजमी करार दिया। स्पेशल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया। सूबाई हुकूमत में इस्लाह लाते हुए वहां गवर्नर बहाल किए। पुराने अफसरों और दफातर को बंद करके 83 नए डिपार्टमेंट कायम किए। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद पर टैक्स नाफिज किया और मुल्क का दस्तूर तैयार किया। जागीरदाराना निजाम का खात्मा कर दिया। जायदाद वालों के लिए सरकारी ओहदे रिजर्व कर दिए। 3 सितंबर 1791 ईस्वी को लुई 16 ने दस्तूर को कबूल कर लिया। पेरिस में इनकलाब के खात्मे का जश्न मनाया जाने लगा। दस्तूरी एतबार से फ्रांस वालों को जमहूरी खुसूसियात अता हो गई थी। शहनशाहियत की लामहदूद ताकत को एक दायरे में लाकर खड़ा कर दिया गया था। इसके बाद इनकलाब दूसरे मरहले में दाखिल हो गया, जिसका जिक्र मैं अपने दूसरे वीडियो में करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर को, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 1 पर मुश्तमिल है, इसे आप सबों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। इसी टॉपिक के पार्ट 2 को मैं अपने अगले ऑडियो विजुअल क्लास में आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए सर्वसमी को दीजिए इजाजत। खालिक कायनात हम सबों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।